So what you have to do, you just go to Google and type Anaconda download. So this is the Anaconda platform from where you can download it for your PC. So just download it from here. And once you download, then in search command window, just click here. It will take a few seconds. So this is the front page you will see. You can be able to see here. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि फर्स्ट दो फॉर द पाइथन पर्पज वी आर बेसिकली यूजिंग जुपिटर नोटबुक. So as you can clearly see here, we will have one Jupyter notebook. Then in a latter part, for the programming purpose, when we deal with a machine learning, we have to use this VS Code, Visual Studio Code. So these two, we will going to use it. So now for Python, we will completely use the Jupyter notebook only. So what you have to do is you just launch it. So this kind of window will be pop up. So for example, now I want to use this Jupyter for my project. So just go here in new and then click on this Python. So one new window or new cell or new file we are able to create here. So if you want to give the title, then you can just go here. You can see here untitled. So now I am just renaming it Python class 1. तो हम लोग क्या करेंगे इसको मतलब सीखने के लिए we will try to learn this Python with question answer form में. So the first question that you have to find out the answer, which is a very common question you will find in interview. The first one is, what are the key features? What are the key features of Python? Whenever you will find out time, just find out the answer for this question. थेरोटिकल पार्ट अब मैं कवर नहीं करने वाला हूँ ज़्यादा. जो जो आप लोगों को करना चाहिए मैं सीधा आप लोगों को बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस आप लोग प्रिपेयर कर लो. द अदर वन कि मैंने ऑलरेडी एक ड्राइव की लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर ली है. माइट बी एवरीवन इज हैविंग दैट लिंक. So kindly just go through it. You will find more number of, there are too many number of videos are available there. Then उसकी assignments क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं, वो सारी चीजें वहाँ पे आप लोगों को दिखाई देंगे. तो पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का कि व्हाट आर द की फीचर्स प्रोवाइडेड बाय द पाइथन. So please try to find some time and try to find out the answer for this question. तो इसको मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को. Now currently we are in this cell, so this is called as a code where you can write your code. अगर मुझे इसको heading करना है तो just go here, do it okay and just run it. So now this will become your heading. If you want to mark down, then here one option is there that is called as a markdown. That will not act as your heading. So इसको वापस क्या करो, run करो तो ये markdown हो जाएगा. So likewise, if you want to do the heading, if you want to give the heading to some comments, then we can do it. I will explain you later on. Then second most important question is whether the Python is case sensitive or not. ये भी बड़ा important question है. So what do you mean by case sensitive? Can someone reply? Capital. है ना? So Python is our case sensitive language. So the answer is yes. So what do you mean by case sensitive? It will consider lower and upper case separately.
So now just mark it down. The first question that you have to find out, and the second question is whether the Python is case sensitive or not. So yes, obviously Python is a case sensitive. I will take one example while we move. So why it is called as a case sensitive? Because यहाँ पे lower और upper case जो रहेगा आप लोगों का, उसको Python separately क्या करेगा, consider करेगा. Next, most important again, what are the variables or what do you mean by variables? So we should have a good knowledge about the variables. What do you mean by variables? Can you know what do you mean by variables? Can you just let me know? क्या वेरिएबल्स मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग और किस चीज के लिए हम लोग वेरिएबल्स यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल, if you want to store your data, then we should have a variable. So the first point is to or to store the data, we should require a variable. The second point related to this, because in question I have gone through several videos. So the first question itself, they ask what do you mean by variables? What are the different ways to define variables? So variables are nothing but we are using variables to store the data. Then second point related to the variable is that variables are case sensitive. Case sensitive. Then how we can define variables? Then you can use characters from A to Z, capital characters from A to Z, or lowercase characters from A to Z in lowercase, or you can use underscore. स्पेलिंग मेरा गलत हो सकता है तो आप लोग उसको देख लेना. अंडरस्कोर. So if you want to define variable, then you have to use, or we can use capital letters from A to Z. Then lowercase also we may use. The fourth important point that we should keep in mind while defining variable is that the variable should not contain any special character. Should not contain any special character. तो ये 4 पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी वेरिएबल के साथ में डील करोगे. और थ्रू आउट यूर जर्नी, पाइथन, मशीन लर्निंग, जहां पे भी जाओगे आपको सबसे पहले वेरिएबल को ही डिफाइन करना पड़ेगा. सो वी विल सी विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग अ वेरिएबल नेम कॉल्ड एज a and just give the value 10. So now if you want to print a, so just type a here and then run that particular cell. So you will get the value of a. Is it fine? Now, for example, if I am taking Manish as a variable, and then if you write down 20, then if you want to print this value, then just do it print and give the variable name. So here variable name is Manish. So just inside print, write down Manish, then run this cell. You will get the value of this. Now, if you want ABC underscore where, or you can name it like that, 30, and then if you just copy and paste here, and if you run this, then again. So in this way, we can assign a variable, or you can define a variable. The one more different approach is if, for example, A equals to B equals to C equals to 30. So in this way also we can easily able to define your variables. Then
Likewise, if you are taking A here, then you will get 30. So again, one more way to define or to assign your variable is that, for example, A, comma, B, comma, C. So these are your three different variable, and I am giving 10, 20, and 30. So, and now if you just take print A, then print B, और अगर आप लोगे print C, so then we can easily print all those variable values. So in this way, we can define our variable. One more way is that in the data types, we will see in detail what do you mean by list. So for variable, you can assign a one list. So list is always, you have to use this square bracket. And if you are using this list 10, comma 20, comma 30, let us say one string also we are adding, Python, and then let us assume this is your 60. So now this is the list which contains different values. उसमें आपको integer भी दिखाई दे रहा है. This is called as integer. We will see in depth what do you mean by integer, what do you mean by string. So एक list हम लोगों ने यहाँ पे define की है जिसके अंदर बहुत सारे variables, बहुत सारे data points हम लोगों के पास में. And now if you want to print this A, so then you can assign it that particular list to a particular variable. तो इतने सारे वेज है हम लोगों के पास में जहां पे आप लोग क्या कर पाओगे, वेरिएबल को असाइन कर पाओगे. इज इट फाइन? हेलो. Yes, sir. So the first question that we have seen, what do you mean by, what is the, whether the Python is case sensitive or not. तो आपका आंसर होना चाहिए यस. दूसरा है हम लोगों के पास में वेरिएबल. सो वेरिएबल वी आर यूजिंग टू स्टोर द डेटा. वेरिएबल आप अपर केस से या लोअर केस से भी डिजाइन कर सकते हो, या अंडरस्कोर्स भी आप उसमें यूज कर सकते हो. देन वेरिएबल शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर. स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा @ इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट @, so it will show you invalid syntax because @ is your special character. So you never use a special character to assign variable. तो ये हमें चीजें हमें ध्यान में रखना है. Then again, one important question people may ask you, what are the types of variable? Types of variable. So we have local variable, and second we have global variable. अभी पाइथन में as we move, हम लोगों के पास में एक फंक्शंस रहेंगे. लाइक डेटा टाइप्स वी विल हैव अ फंक्शंस. सो जो भी वेरिएबल आपका इनसाइड फंक्शन में लिखा जाएगा उसको आप लोकल वेरिएबल कहोगे. द वेरिएबल which is written inside the function called as a local variable. And जो भी आपका वेरिएबल आउटसाइड द फंक्शन लिखा जाएगा उसको आप लोग क्या कहोगे, ग्लोबल वेरिएबल. So this is a global variable, the function which is written outside the function. इसमें और एक पॉइंट हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा कि this local variable is only accessible with that particular function only. Accessible only by function.
but this global variable you can access or you can access inside the function as well as outside the function, can be accessed by function or outside function. तो इतना हम लोगों को पता होना चाहिए वेरिएबल के बारे में. तो दो टाइप के वेरिएबल्स हैं हम लोगों के पास में. वन इज यूर लोकल वेरिएबल एंड नेक्स्ट वन इज यूर ग्लोबल वेरिएबल. जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. दो वी हैव नॉट, हम लोगों को पता नहीं है अभी डिफाइन किस तरह से कर दे चीजें, लेकिन जस्ट फॉर इन अ लेमैन्स लैंग्वेज, अगर कोई भी फंक्शन आपको डिफाइन करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डीईएफ नाम का एक फंक्शन है. अब मैं क्या करता हूँ, एक डीईएफ नाम का फंक्शन लेता हूँ और एक डिफाइन करता हूँ उसको मनीष नाम से. मैंने क्या किया है, मनीष नाम का एक फंक्शन लिया है, उसको डिफाइन किया है सेमीकोलन, और मैं जस्ट क्या करना चाहता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ. नाउ आई एम टेकिंग वन वेरिएबल दैट इज कॉल्ड एज मैसेज. एक वेरिएबल लिया है, वो क्या करेगा, एक स्ट्रिंग को लेगा फॉर एग्जांपल और इतना कहेगा हेलो, दैट्स ऑल. और हम लोग यहाँ पे करेंगे कि दिस मैसेज शुड बी प्रिंट. आई एम जस्ट trying to let you know what do you mean by local variable and what do you mean by global variable. So now जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करते हो एक बार, जैसा कि यहाँ पे आप लोगों ने मनीष नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, तो आपको उसको रिटर्न भी करना होता है. मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ फिर, दैट फंक्शन आई एम रिटर्निंग, दैट्स ऑल. इतना अगर आप लिख दिए तो ये आपका यहाँ पे मनीष नाम का एक फंक्शन यहाँ पे डीईएफ का यूज करके आपने क्रिएट किया है. नाउ यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है हम लोगों ने, द वेरिएबल विच इज रिटर्न इनसाइड द फंक्शन. नाउ मनीष इज योर फंक्शन एंड दिस मैसेज इज योर वेरिएबल नेम and this variable you have written inside this function. That's why it is called as a local variable. Are you getting my point? Hello? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या किया हमने, बस ये अभी छोड़ दो कि ये डीएफ क्या है. जस्ट मैं एक बता रहा हूँ कि एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है, उसके अंदर एक वेरिएबल लिया है और वो हम क्या कर रहे हैं, वो वेरिएबल को दे रहे हैं एक स्ट्रिंग हेलो करके, और हमको बस ये करना है, उसको प्रिंट करना है. When you run this, so you will get hello. But now suppose you want to print this or you want to use this variable outside this function. Now your function is ends here, and now you are trying to call this function outside your function, call this variable outside your function. So then if you run this, then it will create or it will give you a message, error message, that is name message is not defined, which means that कि जो भी आपके लोकल वेरिएबल रहेंगे वो सिर्फ आपके जो फंक्शंस रहेगा उसी के अंदर आप उसको यूज कर सकते हो. लेकिन अगर आउटसाइड फंक्शन आपने उसको यूज किया तो देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, आप वो नहीं कर सकते यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लोकल वेरिएबल. देन नेक्स्ट हम लोगों के पास में आता है कि ग्लोबल वेरिएबल. तो सेम प्रोग्राम मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंट्रोल एक्स करके, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ. और एक बार इसको फिर से कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर देता हूँ यहाँ पे. सो नाउ क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया विच हैज अ नेम मैसेज, उसको एक स्ट्रिंग पास की हम लोगों ने हेलो. बट द डिफरेंस इन दिस कोड एंड दिस कोड इज, यहाँ पे जो वेरिएबल आप लोगों ने डिफाइन किया है, दैट वेरिएबल यू हैव डिफाइंड आउटसाइड योर फंक्शन. सो दिस इज योर फंक्शन, और जो वेरिएबल आप लोगों ने लिया है वो आउटसाइड फंक्शन आप लोगों ने लिया है. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो वेरिएबल है दैट इज कॉल्ड एज यूर ग्लोबल वेरिएबल. अब ये ग्लोबल वेरिएबल क्यों, क्योंकि इसको आपने आउटसाइड द फंक्शन क्या किया है, यहाँ पे लिया है.
डिफाइन किया है। और जो ग्लोबल वेरिएबल रहते हैं वो आप लोग क्या कर पाओगे, दोज वेरिएबल यू कैन एसेस इनसाइड योर फंक्शन एज वेल एज आउटसाइड योर फंक्शन। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ये फंक्शन के अंदर भी आप लोगों ने इसको कॉल किया है और फंक्शन के बाहर भी आप लोगों ने इसको कॉल किया है। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो 2 बार हेलो आएगा। क्यों आएगा 2 बार हेलो? बिकॉज द फर्स्ट टाइम it will print hello because you call that particular variable, global variable, inside your function and outside your function. That's why you will get 2 times hello here. Is it fine? That's why it is called as a global variable. जो वेरिएबल आपका फंक्शन भी कॉल कर पाएगा और आप उसको फंक्शन के बाहर भी कॉल कर पाओगे। सो दिस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीपल आर आस्किंग एवरी टाइम कि ये क्या होता है, लोकल वेरिएबल क्या है और ग्लोबल वेरिएबल क्या है। इज इट फाइन? एनी डाउट टिल? Got it, sir. समझ में आ रहा है सब लोगों को ये क्या चल रहा था? Yes, sir. ओके, देन वी विल मूव नेक्स्ट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स। एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछेगा कि पाइथन लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में कमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट डू यू मीन बाय कमेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल? कमेंट्स मतलब क्या रहता है? हम लोगों के ऊपर कमेंट्स पास करते हैं ना, यस और नो? So in technical language or in coding language, what do you mean by comments? Explaining what is going on. Correct. In more be specific way कि for example आप लोगों ने कोड लिखा है और आपने वो कोड किसी और इंसान को दिया है। You have written something and you have just given your file to someone else. Now whatever you have written that should be easily understandable by others. अगर आपने लिखा है और वो सिर्फ आप ही को समझ में आ रहा है और बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो देन इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। सो क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि जो भी कोड आप लिख रहे हो उसको आप क्या करते हो, कमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हम लोगों ने अभी ये एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज दिस मीन, व्हाट इट मीन्स, ये क्या किया मैंने यहाँ पे, इसको Comment. कमेंट किया। अब अगर कोई भी इसको पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, दिस लाइन का क्या मतलब हुआ कि इट इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल वेरिएबल। और ये यहाँ पे इसको क्या कहेंगे, इसको अगर मैं फिर से कमेंट करूंगा तो इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस इज कॉल्ड एज योर लोकल वेरिएबल। सो जब व्हेन दिस कोड आई विल गिव टू समवन एल्स, इट दैट पर्सन कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये इस लाइन का मतलब ये कहना चाहता है कि इसको ग्लोबल वेरिएबल बोला है इसने, इसको लोकल वेरिएबल बोला है। सो दैट इज नथिंग बट योर कमेंट्स। तो जब भी आप हाई लेवल प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हो तो कमेंट्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। तो व्हेन यू आर राइटिंग कोड, योर कोड शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट्स लिखनी पड़ेंगी। अब क्या होता है कि कमेंट्स देंगे किस तरह से, क्योंकि ये भी इंटरव्यू में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है फिर कि चलो आपको कमेंट्स तो पता है लेकिन कमेंट्स किस तरह से करोगे पाइथन में। तो द फर्स्ट मेथड इज दैट if you want to comment your single line code or single line code or single line comment, what we will use, you have to use this hash। आप लोग क्या यूज करोगे, हैश यूज करोगे। अगर मल्टीपल लाइंस अगर आप लोगों के पास में है ना, मल्टीपल लाइंस को अगर आप कमेंट करना चाहते हो तो किस तरह से करोगे, यू हैव टू यूज कंट्रोल, ये शॉर्टकट की है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। इसको आप लोग क्या कर पाओगे, इस तरह से कमेंट कर पाओगे। और थर्ड वन है आप लोगों का, अगर मल्टीपल लाइन्स है आप लोगों के पास में, फिर से एक बार ये मल्टीपल अगर लाइन्स है आप लोगों को उसको कमेंट करना है तो द सेकंड अप्रोच इज
क्या करोगे, इसको आप लोग 3 टाइम्स कुछ इस तरह से सेमीकोलन में आप उसको क्या करोगे, इसको क्या कहते हैं, कॉमाज. व्हाट इज दिस, सेमीकोलन और व्हाट, मैं नाम भूल रहा हूँ इसका. Apostrophes. हाँ, इस तरह से आप लोग उसको कमेंट कर सकते हो. जैसा कि मैं एग्जांपल लेता हूँ अभी, जस्ट वी आर लर्निंग Python. Now if you want to just comment it, so क्या use करोगे, likewise if you run this then it will not create any impact on your code. It is just for the understanding purpose. अगर आपको मल्टीपल लाइंस कमेंट करना है तो अगर मैं जस्ट लेता हूँ यहाँ पे मशीन लर्निंग एंड आई एम जस्ट टेकिंग दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और अभी एक लाइन में आया है फॉर एग्जाम्पल. नाउ इफ यू वांट टू जस्ट कमेंट दिस लाइंस, सो क्या करोगे, एक तो एक अप्रोच आपके पास में है कि आप इंडिविजुअल लाइन में जाओ और उसको हैशटैग लगा के कमेंट करो. बट दिस इज नॉट अ फिजिबल वे, क्योंकि अगर 100 लाइन रहेंगे तो क्या 100 लाइन में थोड़ी हम लोग एक एक इंडिविजुअली जाके कर पाएंगे. सो द बेटर ऑप्शन इज दैट इसको सिलेक्ट कर लो. वंस यू सिलेक्ट, यूज कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, दैट्स ऑल. इज इट फाइन? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ रहा है ये कमेंट किस तरह से कर रहे हैं? और थर्ड जो ऑप्शन है हमारा मल्टीपल लाइंस वाला, दिस वन, अगर इन्हीं लाइंस को अगर कॉपी पेस्ट यहाँ पे करूंगा, सो दिस आर ऑल द शॉर्टकट्स यू हैव टू यूज थ्रू आउट योर मशीन लर्निंग. जब प्रोग्रामिंग लिखोगे तो ये आपको बहुत जरूरी है. अगर इसी को मुझे ये थर्ड अप्रोच में करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इसको पूरा सिलेक्ट करो और इसको क्या कर दो, दैट्स ऑल. सो दिस विल बी योर कमेंट. सिंगल कोटेशन यूज करो या डबल कोटेशन यूज करो, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस. यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करके इसको इस तरह से भी करूंगा तो आई विल गेट सेम रिजल्ट. इज इट फाइन? yes or no? So this is the importance of comments. समझ में आ रहा है कि ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. देन आपको कुछ शॉर्टकट्स की के बारे में पता होना चाहिए. 2-3 शॉर्टकट कीज है जो आप रेगुलर बेसिस के ऊपर यहाँ पे यूज करोगे. द फर्स्ट शॉर्टकट इज शिफ्ट प्लस एंटर. शिफ्ट प्लस एंटर ये क्या करेगा, आपका करंट सेल जो है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेल. ये जो है ना अपन अभी ये दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं एक सेल. करंट सेल को एग्जीक्यूट करेगा एंड गोज टू नेक्स्ट सेल. जैसा कि अभी इसको मैं क्या करता हूं, कमेंट देता हूं. अब मुझे क्या करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है और नेक्स्ट सेल में जाना है, तो मैं क्या दबाऊंगा, शिफ्ट प्लस एंटर दबाया. सो दिस सेल will execute and we can move to the next cell. So ये आपको पता होना चाहिए एक शॉर्टकट की. The second shortcut key is जो मैंने बताया आपको, कंट्रोल प्लस एंट्रल, कंट्रोल प्लस एंटर. ये शॉर्टकट की क्या करेगा आप लोगों का, इफ यू वांट टू रन ओनली अ करंट सेल देन यू हैव टू यूज दिस टू रन करंट सेल. अभी यहाँ पे भी आपको एक
ऊपर वाले साइड में एक रन का ऑप्शन दिखेगा, लेकिन आप हर टाइम यहाँ पे जाके नहीं रन करोगे इसको। हम लोग क्या करेंगे फिर यहाँ पे कंट्रोल सी, अगर आप लोगों ने कंट्रोल एंटर दबाया यहाँ पे, so it will execute your current cell only. So this 2-3 shortcut key you should remember, मतलब how to comment and then how to execute your current cell and moves to the next cell, ये आपको पता होना चाहिए। Then what do you mean by shift plus enter, ये भी आप लोगों को शॉर्टकट ध्यान में रखना है। So this is all the basic about कि किस तरह से वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। लोकल वेरिएबल मतलब क्या है, ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या है, कमेंट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कमेंट्स को लिखा किस तरह से जाता है पाइथन में, और कौन कौन से शॉर्टकट कीज हमारे पास में अवेलेबल है। नाउ वी विल मूव इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज डेटा टाइप्स इन पाइथन। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। डेटा टाइप्स इन पाइथन, आई एम जस्ट गिविंग shift plus enter. So there are basically 3 data types we are having. The first one is called as a basic data types. उसमें सबसे पहला आएगा आपका इंटीजर, उसके बाद में आपका आएगा फ्लोट, नेक्स्ट यू विल हैव अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, देन बूलियन डेटा टाइप, and then we will have a integer, float, complex, boolean. Before that, the third most important is string data type. So these are called as your basic data types. ये सभी के सभी हम लोगों को देखना है। Most probably these 3 are very much important. और ये तीनों में भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास में स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग का ही हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं। So priority wise string, integer and float. The second classification that comes under the data types is collection data type. ये भी बहुत important है, collection data types. So in a collection data types we will have list data type. ये हम लोग देखेंगे बाद में list किस चीज को कहते हैं। Then dictionary data type denoted with a DICT. Then we will have a tuple data type and then set data type. Out of these 4, this list and dictionary, आप लोग जहां पे भी कोडिंग देखोगे आप लोगों को ये 2 ही दिखाई देंगे। सो लिस्ट और डिक्शनरी बहुत यूज होता है। एंड फाइनली सम मिसलेनियस और वी कैन से अदर डेटा टाइप्स, उसमें आप लोगों को रहेगा फ्रोजन सेट, देन वी हैव रेंज। इनको नहीं देखने वाले हम लोग, मैं जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन आएगा तो किस तरह से डील करेंगे। Our main focus is on only the string, integer, float, complex, and then here list and dictionary. So these are the 3 different classification we are having for data types: basic data types, collection data types and other data types. So the first we will see, इसको मैं mark down कर देता हूँ। The first we will see integer data type. Integer data type, इसको हम दे देंगे हेडिंग। What do you mean by integer? ये तो अभी सब हम लोगों को पता है। ये what it means integer. क्या रहेगा इंटीजर? हेलो, whole number, positive or negative. it is called as a whole number. That whole number can be your
पॉजिटिव और that number, इसको इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव. So if you want to define a variable which has a data type, then a equals to 10 is nothing but your what? What is this? Which kind of data type that variable a is having? Integer. Integer. So now if you want to find out the type of any variable, then we have a specific function called as type, and you have to use this function on a continuous or regular interval of time period while writing a machine learning course. So this type is a function, and if you want to find out the type of this a, then just write down a here and shift enter, so it will give you type of your variable. Now for example, if I have b variable and 25.35, and if though it is called as a what, float data type. So if you want to know the type of this b, then it will return a float data type. So likewise, so this is the example of your float data type. So these are all the basic that we should know. Only one example we can see. Then third one, we have a complex data type. Suppose we have a variable name as COMP, and if we are just applying 3 plus 4j, complex, we know that real and imaginary part will be present. So इसको अगर हम लोग देखेंगे, इसका type of your complex, so it will provide you a complex data type. Is it fine? क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों को कि अगर डेटा टाइप अगर आपको जानना है तो व्हाट इज द वे, विच फंक्शन यू विल गोइंग टू यूज. सो योर आंसर वुड बी द, यू हैव टू यूज दिस टाइप फंक्शन to know the data type of any variable. Is it fine? Yes, sir. Now the important is string. We will start with a string. String data type, we will spend little bit more time on this string data type, because ये अगर आपको समझ में आया तो फिर समझ लो कि आपकी पाइथन की जर्नी इजी हो जाएगी. Now first point is, what do you mean by string? क्या रहेगा string? So first point is, it's a collection of characters. Now this words, now the upcoming words are important. The collection of characters surrounded by single quote or double quote or triple quote. What do you mean by single quote? What do you mean by single quote? This one. What do you mean by double quote? This one. What do you mean by triple quote? This one. So whatever you see that is surrounded by this single quote, double quote or triple quote, which is called as your string data type. Let us have one example.
Now let us assume I am just having a variable name as a string and मैं इसको कर रहा हूँ इस तरह से. First I will take single quote. We are learning Python. Now this is the string. Why it is, and the data type of this variable, let us assume this is a string variable name. The variable name as a string. To avoid confusion, let us take var. So now you have created a one variable and you have passed a one string. Why it is called as a string? Because it is surrounded by a single quote. Now if you want to find out the type of this variable, then you just write down here var. So you will get string data type. If you want to print this variable, then what you should write down? Print var. So you will get this kind of output. We are learning Python. Now what is the difference between single quote and double quote? Now for example, same example I am taking, and if I am just writing in a double quote, then again you will get same string. And if you want to print this, अगर मैं इसको ले लेंगे हम लोग var1, ये वेरिएबल का नाम चेंज किया मैंने यहाँ पे, इसका टाइप भी आएगा यही, और अगर इसको प्रिंट भी करना है हमें तो सेम आंसर यू विल गेट. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप सिंगल कोड दे रहे हो या डबल कोड दे रहे हो. तो वी आर लर्निंग पाइथन. सो अगर कोई भी स्ट्रिंग आपको डिफाइन करनी है तो आपको सिंगल कोड यूज करना पड़ेगा या तो डबल कोड यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ट्रिपल कोड? नाउ अगेन टेक दिस एग्जांपल. दिस इज अ var वेरिएबल नेम var3, और इसको अगर आप लोगों ने इस तरह से लिखा है, नाउ दिस इज योर डेटा, मल्टीपल लाइन डेटा, एंड इफ यू वांट टू कंसीडर एज अ स्ट्रिंग वन, देन क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रिपल कोड में आपको डालना पड़ेगा. नाउ बेस्ट वे टू पुट दिस डेटा इनटू ट्रिपल कोड इज सिलेक्ट दिस वन, और आप लोग क्या कर दो, इसको इस तरह से कर सकते हो. अगर अगेन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और क्या करना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द टाइप फॉर दिस थर्ड वेरिएबल एंड इफ यू वांट टू प्रिंट दिस वन, तो इस तरह से आप लोगों को आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज द कंट्रोल एक्स स्ट्रिंग डेटा टाइप. उसको प्रिंट अगर करना है तो कुछ इस तरह से. इज इट फाइन? हाउ टू राइट डाउन द स्ट्रिंग? Sir, you have explained for the comment as well, we can use the triple quote then. हाँ, but it is for only commenting purpose, Okay. है ना? Here But we have to here define it. variable, you Yeah. have to store this data first into a variable. So here Okay. you are just commenting, you are not storing that data. Yeah, okay. But here you have taken one variable. Let us, we have taken a var3, and there you want to store this string. Yeah, got तो ये it. string किस तरह से consider करेगा? Then this multiple line, if you want to consider as a string, then you have to quote it with a triple quote. Okay. Is it fine? We can use any one of those. Yes. For example, Control C, Control V, यहाँ पे लेता हूँ 4, and then just remove this, and if you take like this, इसका आएगा string, and if you want to print, then you will get same output. Got it. समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? तो
Yes or no? Yes. Yes. Then Yes, the sir. second important point, interviewer may ask you कि whether the strings are mutable or immutable. ये बड़ा ही important term है. Whether the strings are mutable or immutable. Now, strings are here immutable. Now, what is the meaning of mutable and immutable? Immutable means एक बार अगर आपने string को define कर दिया, once you define a string, then you cannot do the changes in that. Once you define means defines. You are not allowed to, you are not supposed to allow to change the string. मतलब एक बार आपने ये डिफाइन कर दिया ना, तो अब इसमें आप ऐड नहीं कर पाओगे, इसमें से कुछ निकाल नहीं पाओगे. दैट्स ऑल. दैट्स व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल, नॉट चेंजेबल. एंड व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल? एक बार आपने डिफाइन भी कर दिया, बट यू कैन हैव दैट अथॉरिटी टू चेंज दैट पर्टिकुलर डेटा, that data sets. We will see which are the types which are comes under the category of mutability and immutability. तो अगर किसी ने पूछा है आपको कि स्ट्रिंग्स आपकी म्यूटेबल है या नहीं है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स आपकी इम्यूटेबल है. इम्यूटेबल मीन्स व्हाट? क्या क्या कह पाओगे इम्यूटेबल में? उसको चेंज नहीं कर पाएंगे हम लोग. Cannot be changed. Okay. So this is the important point that you have to remember. Strings are your immutable. I think now no one is having confusion in how to define a strings. क्या रहेगा? You have to use single quote or double quote or triple quote. Triple quote we are using when we are having multiple lines data. So to define that multiple lines data as a string, you have to use this triple quote. Now the next important is string indexing. ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम सब लोगों को आना ही चाहिए. अगर ये समझ में आया तो बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी. What do you mean by string indexing? Now let us assume I am taking a one variable string and I am just taking this machine learning here. Now indexing means what? Now whatever the characters are present inside this string which has a one particular index. For example, अगर मैंने यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V किया, now indexing you have to use this square bracket. अगर मैंने यहाँ पे 0 टाइप कर दिया, if I write 0 here, which means that it will return you the first character of your string, and the index for that first character is 0. Now let us assume Ctrl+C Ctrl+V अगर मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे लिखा 10th, which means that whatever the 10th character is present in that string, वो आपको यहाँ पे रिटर्न करेगा. That is called as a string indexing. So we have two types of indexing. One is called as a positive index, and second one is called as your negative. So first let us understand very deeply what do you mean by positive indexing. Now what I am doing, I am taking this machine learning MANISH, then space LEARNG. सो ये जो हमारा स्ट्रिंग है, इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हम लोगों के पास में है. अब पॉजिटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? दिस m is have index 0. M is present at index 0. This A is present at index 1. This N is present at index 2.
this I is present at index 3, if this S is present at index 4, ये 5 के ऊपर है, देन आपका स्पेस है यहाँ पे, तो स्पेस इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द कैरेक्टर इन प्रेजेंट इन यूर स्ट्रिंग। तो ये जो स्पेस है ये 6 नंबर के ऊपर प्रेजेंट है आपका। देन दिस L is present at 7 number, LEA, ये कहाँ रहना चाहिए आपका, E 8 नंबर के ऊपर रहेगा, देन A 9 नंबर के ऊपर, देन R 10th number, the index for this N is 11, the index for this I is 12, the index for this is 13, और ये आपके लिए कितना होना चाहिए, 14. Might be I missed something. First of all, we will try to just understand. Let us assume Control C, इसको मैं मार्क डाउन कर देता हूँ, इसको मैं एंटर करता हूँ. Now I just first want to find out the length of the string. अगर मुझे ये स्ट्रिंग की लेंथ अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, वी हैव वन स्पेशल फंक्शन कॉल्ड एज अ लेंथ दैट इज डिफाइंड और दैट इज रिटन विथ LEN, और उसके अंदर क्या कर दो, जिसकी आपको लेंथ फाइंड आउट करना है वो वेरिएबल का नाम पुट कर दो, शिफ्ट दबा के एंटर, तो लेंथ इज योर 16. सो द लेंथ ऑफ दिस मशीन लर्निंग और द लेंथ ऑफ दिस वेरिएबल इज 16, विच मीन्स दैट अगर ये मशीन लर्निंग में यहाँ पे लेता हूँ और पॉजिटिव इंडेक्सिंग के हिसाब से क्या रहना चाहिए, दिस विल बी योर फर्स्ट, थोड़ा इसको कम कर देता हूँ, इंडेक्सिंग समझने के लिए आसान रहेगा. नाउ इफ आई एंटर, सो द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग 1 इज हाउ मच, 7. सो m का क्या इंडेक्स आएगा, 0, a का इंडेक्स क्या आएगा, 1, c का इंडेक्स क्या आना चाहिए, 1, this is your 2, this is your 3, this is your 4, this is your 5 and this is your 6. So इस तरह से आपका ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग रहेगा. So this is called as your positive indexing of your variable. नेगेटिव इंडेक्सिंग मतलब क्या रहेगा फिर, नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब हुआ, नाउ दिस विल बी योर -1 index for this E, for this N you will have -2 index, for I नेगेटिव इंडेक्स में ये -3 रहेगा, H के लिए आपका -4 रहेगा, C के लिए आप लोगों का you will have -5, then -6 and then for M you will have -7. Are you able to understand what I am trying to telling you? There are two types of indexing available, positive index and negative index. अगर आपको स्ट्रिंग में का कोई भी कैरेक्टर अगर भी स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर चाहिए तो आपको क्या देना पड़ेगा, यू हैव टू पास द इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर so that you can fetch that character from that particular string. Now if you want to fetch this H, अगर आपको दिया कि एक स्ट्रिंग है और बोला कि ये मुझे एक कैरेक्टर फेच करके दिखाओ, तो हाउ यू विल गोइंग टू फेच दैट कैरेक्टर, फर्स्ट यू शुड नो द नाउ यू वांट टू फेच दिस H कैरेक्टर, तो किस तरह से कर पाओगे फिर H, व्हाट इज द इंडेक्स फॉर दिस H, 0 1 2 3, इज इट फाइन. सो अगर यहाँ पे मैं अगर कुछ इस तरह से लिखूंगा स्ट्रिंग एंड H विल बी प्रेजेंट एट 0 1 2 3 इंडेक्स, सो यहाँ पे 3 अगर डालोगे तो आपको H आ जाएगा. If you want to find out the last character or you want to fetch the last character of your string, then क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, लास्ट कैरेक्टर के लिए क्या करोगे, but you need to put only -1, so we are able to fetch the last character of your string.
समझ में आ रहा है क्या ये? Yes, sir. Yes. हेलो एवरीवन। यस सर, आ रहा है। तो इंडेक्सिंग में क्या देखना है सिर्फ हमें कि कौन सा चीज कौन से इंडेक्स के ऊपर है। अगर बी स्पेसिफिक वो कैरेक्टर अगर आपको चाहिए तो आपको ये वहां से इंडेक्सिंग का यूज करके आप लोग उसको बुला सकते हो। सो इस तरह से आप लोगों का इन वन ऑफ द इंटरव्यू माइट बी दे आस्क टू फाइंड आउट द लास्ट और टू कॉल द लास्ट कैरेक्टर। तो लास्ट कैरेक्टर अगर कोई भी स्ट्रिंग का है आपका तो आप लोग उसको इस तरह से फेच कर सकते हो। इज इट फाइन? सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। समझ में आ रही है क्या बात? Yes. हेलो, आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर साइड। तो Yes, तभी sir. जाके मुझे पता चलेगा कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अदरवाइज नहीं तो कोई यूज नहीं रहेगा फिर इसका। आ रहा है सर। तो आप लोग हाँ क्या सर, हो रहा है। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम डेटा सेट को हैंडल करेंगे तब आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि किस तरह से इंडेक्सिंग की जाती है, कितने नंबर ऑफ रोज आपको लेना है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपको लेना है, तो वो आपको रिलेट करना पड़ेगा इसके साथ में। देन नेक्स्ट कंसेप्ट कम्स दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग अ वन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 2 और इसको ले लेंगे अभी मशीन लर्निंग। अब स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है वो तो पहले हमको देखना पड़ेगा। इसका एक सिंटैक्स रहेगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग का, नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग, देन ये इंपॉर्टेंट है, ये समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा था। स्टार्ट इंडेक्स, देन ये सेमीकोलन, देन यू विल हैव एंड इंडेक्स वैल्यू और उसको बोलेंगे एंड इंडेक्स, and again semicolon, and we have step size, तो जिसको भी अगर ये स्ट्रिंग का जो सिंटैक्स है स्लाइसिंग का ये समझ में आ गया तो उसके लिए पाइथन की जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। जैसा कि फॉर एग्जांपल नाउ इफ यू वांट टू प्रिंट दिस कंप्लीट स्ट्रिंग, अगर आपको इसका स्टार्टिंग इंडेक्स क्या रहेगा, बाय डिफॉल्ट the starting index value is, स्टार्टिंग इंडेक्स की जो वैल्यू रहेगी वो 0 रहेगी, एंड इंडेक्स की जो वैल्यू रहेगी बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो रहेगा। बाय डिफॉल्ट एंड इंडेक्स की जो वैल्यू रहेंगी वो आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग? वी हैव वन फंक्शन ऑलरेडी वी हैव सीन जिसमें स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है, अगर वो आपको जानना है तो आपको लेंथ यूज करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ही आपकी क्या रहेगी, एंड इंडेक्स की बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहेंगी। और ये जो स्टेप साइज है ना, बाय डिफॉल्ट अगर आप इफ यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग देन द बाय डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ दिस स्टेप साइज इज 1। का क्या मतलब हुआ अब वो हम देखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस मार्क डाउन इट। नाउ सपोज इफ वी हैव दिस स्ट्रिंग, हटा दो यहाँ से, ये सिंटैक्स है मेरा। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, नाउ सपोज आई वांट टू प्रिंट दिस कंप्लीट स्ट्रिंग, अगर मुझे पूरा कंप्लीट स्ट्रिंग प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट स्ट्रिंग, इज स्ट्रिंग 2। नाउ बाय डिफॉल्ट स्टार्ट इंडेक्स कुछ भी नहीं देना है, एंड इंडेक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं देंगे हम लोग, और स्टेप साइज भी कुछ भी नहीं देंगे। सो इफ यू आर नॉट गिविंग एनी वैल्यूज एंड इफ यू आर जस्ट पुटिंग लाइक दैट, देन इफ यू प्रिंट इट, शिफ्ट दबा के एंटर दबाओगे, so you can see you are able to print the complete string। समझ में आया ये पहला पॉइंट? Yes. Yes or no? हेलो अदर?
हाँ जी सर. Hello. Yes, sir. Hello. Yes, sir. Now suppose if somebody asks you कि मुझे क्या करना है, स्ट्रिंग की सिर्फ पहले 5 ही अक्षर मेजर करना है. अगर आपको बोला कि यू जस्ट गिव मी द फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ योर स्ट्रिंग, then in that case you have to use this string slicing concept. So first 5 characters means देखो MACHI, ये फर्स्ट 5 कैरेक्टर हम लोगों को चाहिए. सो योर स्टार्टिंग इंडेक्स शुड बी 0. एंड इंडेक्स क्या रहना चाहिए आपका 5. एंड स्टेप साइज हम कुछ भी नहीं देंगे. तो आपको पहले 5 कैरेक्टर वो आपको देगा. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे और एक बात समझने की है कि whenever we are using a string slicing, then for example here you have given 0 to 5, which means that 0 index character जो रहेगा that will be included, but the last end index value जो रहेगा वो जो character रहेगा that will be excluded. For example, from here 0 to 5 we have taken, which means that this m is at 0th index, then this one आपका first index के ऊपर है, this is second index, third, fourth, fifth and sixth, है ना. Naturally in that example ideally you have given the start and end index values, that is 0 and 5. लेकिन क्या होगा स्ट्रिंग स्लाइसिंग में जो आपका लास्ट एंड इंडेक्स वाला ये जो पोर्शन रहेगा वो इसको काउंट नहीं करेगा. दैट विल बी एक्सक्लूडेड. दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग दिस MACHI ओनली. सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिंग स्लाइसिंग. अगर आपको किसी ने कहा, इफ समवन आस्क यू फाइंड आउट द कैरेक्टर्स फ्रॉम 8 to 10, then in this way you will get these 2 characters. Are you getting? Yes or no? Yes, sir. Now for example, in those first 2 examples we have not considered this step size. So अगर इसको आप हटा भी दोगे, मतलब ये सेमीकोलन नहीं भी लिखोगे तो it will not going to affect the, मतलब इसका कोई अफेक्ट नहीं रहेगा आपका. लेकिन अगर आप स्टेप साइज दे रहे हो तो उसका क्या फर्क पड़ता है. जैसा कि अभी फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया, एंडिंग इंडेक्स भी मेरा कुछ नहीं है, बट आई एम प्रोवाइडिंग स्टेप साइज इक्वल्स टू 2. इसका क्या मतलब होगा? दो का गैप Can you guess? लगेगा मे बी. It will take the pointer from +2. Sorry, I think it will consider +2, like 0. If the pointer it has 0, then it will consider 0 plus 2. हाँ, which means that it will skip 1 character. तो अगर इस तरह से आपने दिया और अगर प्रिंट किया तो देखो क्या आएगा. उसने क्या किया, 0 इंडेक्स वाला कैरेक्टर उठाया, then as you have given the step size is 2, then this उसने क्या किया, a को क्या कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, then सेकंड कैरेक्टर उसने ले लिया C. सो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, उसको स्टेप साइज डिफाइन कर सकते हो. यहाँ पे अगर मैंने स्टेप साइज 3 दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल Z करता हूँ इसको, इफ आई विल प्रोवाइड स्टेप साइज इज 3, विच मीन्स दैट 0 इंडेक्स के बाद में हर 2 कैरेक्टर को वो स्किप करेगा और बाकी थर्ड वाला कैरेक्टर उठाएगा. इज इट फाइन? Yes, sir. Will Yeah, it समझ में आ रहा है? include ये space as well? ये यस, दिस स्पेस आल्सो इंक्लूडेड, ये भी इंक्लूड करेगा. So space will be Yes. will also have some index. For example, in that case, M is having 0 index, A is having 1, C is having 2, then 3, 4, 5, 6, space index is 7. For example, now just consider this one, and
we will find out the 7th number index. So you will get this space. Is it fine? Yes, sir. समझ में आ रहा है ये? एक बड़ा इंटरव्यूअर sir, लोगों का बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है कि कैन यू रिवर्ट दिस स्ट्रिंग. अब मशीन लर्निंग है ना, तो इसको रिवर्ट करके दिखाओ. मैंने जितने भी मेरे कलीग्स को पूछा है कि आप लोगों को क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे, तो वो बोले सबसे जितने भी इंटरव्यू दिए बोले उन सब में मुझे एक कॉमन क्वेश्चन यही पूछा, बोले कि कैन यू जस्ट रिवर्स डाउन योर स्ट्रिंग. एनी लॉजिक? कर सकते हैं इसको? -1 द्यावं पडेल. है ना. सो फॉर एग्जाम्पल लेट अस एज्यूम कि हम क्या करते हैं अभी, इंडेक्सिंग हमको समझ में आ गई है कि नाउ आई एम नॉट गिविंग एनीथिंग हियर, मतलब यू हैव टू स्टार्ट इंडेक्स इज 0. ये भी कुछ नहीं देना पड़ेगा हमें, मतलब मतलब स्टार्टिंग से लेके तो एंड तक पूरा अपना स्ट्रिंग जाएगा. नाउ इफ यू प्रोवाइड 1 हियर विच मीन्स द नेगेटिव इंडेक्स, इफ यू प्रोवाइड स्टेप साइज नेगेटिव अगर प्रोवाइड करोगे और इसको एंटर मारोगे क्या आ जाएगा, तो योर स्ट्रिंग इज नाउ गेटिंग कंप्लीटली रिवर्स. दिस इज कॉल्ड एज अ नेगेटिव इंडेक्सिंग. अब मुझे फॉर एग्जाम्पल इफ समवन आस्क यू कि this is the here what we did, I'm just adding one, reverse the string. Now if someone asks you can you just let me know the last 10 character of your string or last 4 character of your string, then how to find out last 4 character of your string? ये समझने की कोशिश करो आप, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हम लोगों के लिए. इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस आप लोगों को करना पड़ेगा. लास्ट 4 कैरेक्टर किस तरह से, अब ये नाउ वी हैव दिस स्ट्रिंग एंड माय गोल इज टू फाइंड आउट द लास्ट 4 कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग. लास्ट 4 कैरेक्टर मतलब कौन सा रहेगा, दिस 4 कैरेक्टर NING. मैं आपको लास्ट 10 कैरेक्टर भी बोल सकता हूँ, लास्ट 6 कैरेक्टर भी बोल सकता हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ. तो किस तरह से कर पाएंगे हम लोग? -4. सॉरी, आपका आवाज नहीं आ रहा है. -4. यू आर नॉट ऑडिबल. हेलो निशिता. हेलो. इट इज वेरी सिंपल. देखो हमेशा इस चीज यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है हमें, ये सेमीकोलन का अगर फंडा आपको समझ में आ गया ना, तो आपके लिए चीजें काफी इजी हो जाएगी. अब ये जो फर्स्ट वाला जो, लेट अस टेक ब्रॉडर वे. ये जो फर्स्ट सेमीकोलन जो रहेगा, ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका, ये क्या दिखाएगा कि आपकी स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट हो रही है. दैट इज योर स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ योर स्ट्रिंग. ये जो सेकंड सेमीकोलन के बाद में जो पोर्शन रहेगा, ये क्या रहेगा आपका एंड कहां पे होने वाला है. और जो आपका थर्ड है सेमीकोलन, वो आपका क्या दिखाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आप न्यूमेरिकल वैल्यू दोगे वो आपकी ये दिखाने वाला है कि आपकी स्टेप साइज क्या है, मतलब आपको कुछ कैरेक्टर को स्किप करना है या नहीं करना है. अब इसने क्या पूछा है हम लोगों को कि लास्ट 4 कैरेक्टर बताओ भाई क्या है. तो लास्ट 4 कैरेक्टर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, हमारी स्ट्रिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ से, ये वाला. तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि इसका इंडेक्स क्या है, नेगेटिव इंडेक्स अगर बात करूंगा तो G का इंडेक्स क्या है, -1. N का इंडेक्स वी हैव -2. I का इंडेक्स -3 एंड N का इंडेक्स -4. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, -4 विल बी योर स्टार्टिंग इंडेक्स, और एंड इंडेक्स क्या है हमारा, जब तक की स्ट्रिंग खत्म नहीं होगी तब तक के. तो वहां कुछ दो ही मत. सो जस्ट kept it is kept as it is.
इसको करोगे तो ये आ जाएगा आपका। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट? मैं ये क्या कर रहा हूं तो समझ में आ रहा है ये? सो इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस कि आपको ये करना पड़ेगा। ये थोड़ा बहुत अगर आप इसके ऊपर कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे मैं क्या कर रहा हूं तो। सो दिस आर द टू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पीपल में आस्क यू कि हाउ वी कैन रिवर्स द स्ट्रिंग, और दूसरा रहेगा आपका कि लास्ट कैरेक्टर अगर आपको फाइंड आउट करना तो किस तरह से कर पाएंगे आप लोग। फिर उसके बाद में आएगा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाउ टू ऐड टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। क्या हम दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को ऐड कर पाएंगे? द आंसर इज यस। लेट अस टेक example. We will try to understand with example. String 1 will be equals to hello Python, and string 2 we can take machine learning. So these are the two strings that we have, and if you want to add, then what you have to write down, just take one string 3 और क्या करेंगे हम इसको concatenation भी इसको बोलते हैं। What do you mean by concatenation? Which is nothing but the adding of two different string. प्लस साइन ले लो, प्लस कर दो। अभी क्या करोगे यहाँ पे, इसको अगर आप शिफ्ट एंटर दबाओगे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको, बिकॉज यू हैव टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग। सो यहाँ पे लेंगे हम लोग कंट्रोल V। इस तरह से आप लोगों को ये मिलेगा हेलो पाइथन ML। अगर यहाँ पे मैं स्पेस दूंगा तो आएगा क्या कुछ? यहाँ पे यू हैव टू गिव सम स्पेस। So hello Python ML. So now in this way we can be able to concatenate two different strings. So ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। अगर मैं इस तरह से करूँ इसको तो, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको मैं क्या करता हूँ अभी, स्ट्रिंग 3 लेता हूँ एंड लेट अस डू वन थिंग, स्ट्रिंग 2 इसको करता हूँ मैं मल्टीप्लाई विथ 5। तो व्हाट इज द एक्सपेक्टेड आउटपुट? क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए हम लोगों का? So you will get 5 times ML. So these are the some operations we can perform over string. Is it fine? Yes. Yes or no? Yes. Yes, sir. समझ में आ रहा है ये? Sir, आ रहा है। Yes, sir. अभी if you are not bored, can we continue? Yes, sir. अभी और 2-3 important point खत्म करना है। Yes. Yes, sir. Hello everyone. हाँ जी सर। हाँ सर। करें कंटिन्यू? यस सर। Yes, Yes. sir. अभी और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और पूरे पाइथन में आप कोई भी अगर वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको ये स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग आपको दिखेगा ही दिखेगा। सो बेसिकली देयर आर 3 ways to do formatting of your string. The first way is you are using f string. ये हम देखेंगे with example what do you mean by f string. Then second way to format your string is using dot format function, and the third way to format your string, that is use of modulo operation. स्पेलिंग गलत हो गया है, of modulo. Modulo means this percentage sign.
modulo operator, using using. So we will see one by one what it means. तो पहला हम लोग देखेंगे f string. So what we will take one example. Let us assume I have a 3 variable, a equals to 10, b equals to 20, and c equals to, now I am adding these two variable a plus b. तो आंसर will be 30 आना चाहिए हम लोगों का. तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? Now first we will introduce what do we mean by f string. तो f string में क्या करेंगे? See, write down directly print, then यहाँ पे मैं लिखता हूँ जब भी आप प्रिंट स्टेटमेंट यूज करोगे और अगर आपको एफ स्ट्रिंग यूज करना है तो किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? यहाँ पे देखो, एडिशन ऑफ ए, but if you are using f string then you have to use this curly bracket, addition of your a and variable name b is c. Addition of your a and b is c. ये इस तरह से आपने इसको कंप्लीट किया, बट नाउ यू हैव टू यूज एफ स्ट्रिंग फंक्शन. सो यहाँ पे क्या दोगे आप? कुछ इस तरह से सेमीकोलन दोगे. सॉरी, सेमीकोलन नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं? व्हाट इट मीन्स? कोलन. गिव कोलन and just write down one function or one f here. So this is called as your f string. So क्या किया हम लोगों ने? Only you have to use one special character that is called as f, which is called as a f string. Now this is addition of a and b is c. तो इसको अगर प्रिंट किए तो देखो इस तरह से आपको मिलेगा. Addition of a is your 10, b is your 20, and the addition is 30. Is it fine? Yes, sir. Hello? Yes. समझ में आ रहा है? मैं इसको और थोड़ा अच्छे से भी लिख सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल फंक्शन एडिशन ऑफ ए एंड बी इज, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो a प्लस b. यू विल गेट सेम आंसर. I hope कि now you don't have any doubt what do you mean by f string. तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्टेटमेंट और f string यहाँ पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अ डॉट फॉर्मेट. इसको क्या करेंगे हम लोग? इसमें आपको f string यूज नहीं करना होता है. डायरेक्टली एडिशन ऑफ, नाउ एडिशन ऑफ, don't write down anything, just curly bracket, addition of a and b is c, and then you have to use this function that is dot format. The first variable name is a, second variable name is your b, and third variable name is your c. So now if you run this, so same result you will get here. Addition of a and b is 30. इसको और अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं. You can choose any way based on your क्या बोलते हैं उसको, आपका जो सुटेबिलिटी है और जो आपको अच्छा लगेगा, आप ये तीनों में से कोई भी एक स्ट्रिंग यूज कर पाओगे. मैं मैक्सिमम प्रीफर करता हूँ ये फर्स्ट वाला यूज करने का. सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? सी की जगह पे आप लोग लिख सकते हो a प्लस b. So same result you will get. And then the third is you have to use this modulo operator. So अगर modulo operator use करना है तो क्या करेंगे फिर हम लोग? सेम फंडा. इसको कुछ इस तरह से एडिशन ऑफ, नाउ अब यहाँ पे जो ये करली ब्रैकेट्स आप लोगों ने लिए थे, इसके जगह पे आपको %d, एडिशन ऑफ %d, that is a, addition of %d, that is b, is your %d. और यहाँ पे आप लोग लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा where % is nothing but your a, b and c. अगर इसको रन करोगे तो इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पे डॉट नहीं चाहिए.
Now addition of 10 and 20 is 30. Similarly आप इसको और कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, ए बी और यहाँ पे ए प्लस बी। तो ये 3 डिफरेंट वेज है हम लोगों के पास में जहां पे आप कुछ इस तरह से स्ट्रिंग का फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इज इट फाइन? यस सर। समझ में आ रहा है? ये बहुत Yes, सिंपल sir. है ये, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग हम लोग कुछ इस तरह से कर पाएंगे। Yes or no? Yes, sir. Then one more important topic is एक, ये भी मैं सारे ही वो क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो लोगों को पूछे गए हैं, है ना। मैं मतलब टू द पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप इसमें से भी आप कुछ कट छाट करो, है ना। ऑलरेडी मतलब जो है उसमें का भी हम बहुत भी स्पेसिफिक टॉपिक देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतने तो टॉपिक आने ही चाहिए हम लोगों को। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज चेक स्ट्रिंग आइटम्स। अभी ये क्या करेगा, जैसा कि यहाँ पे इसको हेडिंग कर देंगे। नाउ लेट अस टेक वन स्ट्रिंग नंबर ले लेंगे इसको 5 और इसको मैं लेता हूँ वी आर लर्निंग मशीन लर्निंग विथ पाइथन। अगर मैंने ये स्ट्रिंग ली और अगर आपको किसी ने पूछा, अगेन एक स्ट्रिंग दे देगा आप लोगों को कुछ भी और पूछेगा कि बताओ कि ये लर्निंग स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आपको किसी ने पूछा कि एक वर्ड दे दिया और पूछा कि ये स्ट्रिंग में प्रेजेंट है या नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड एज चेकिंग योर आइटम दैट इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग और नॉट। तो ये काफी सिंपल है। इसको किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? फॉर एग्जाम्पल नाउ लेट अस टेक दिस लर्निंग। क्या करते हैं, इसको इस तरह से कोलन में लिखो लर्निंग। ये पूरा इंग्लिश लैंग्वेज ही है सिर्फ। पाइथन इज नथिंग बट यूर इंग्लिश लैंग्वेज। लर्निंग इज प्रेजेंट इन स्ट्रिंग 5 और नॉट, ये हमको देखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, लर्निंग इज प्रेजेंट इन दिस स्ट्रिंग। अगर मैं कुछ इसको इस तरह से लिखूंगा और इसको अगर शिफ्ट दबा के एंटर प्रिंट करूंगा तो ट्रू बोलेगा, विच मीन्स दैट दिस, मतलब आपको क्या मिलेगा आंसर, ट्रू और फॉल्स में मिलेगा। So if that particular word is present into your string, then you will get an answer true. And if that particular letter is not present into your string, then you will get false. Though here learning is present into your string, that's why we will get a true answer here, which means that this is present. अब हमने एक देखा था कि whether the Python is case sensitive or not, अब उसका बेस्ट एग्जांपल यही है। इस तरह से देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी करता हूँ और सिर्फ ये एल को बड़ा कर देता हूँ, कैपिटल कर देता हूँ। सो अब लर्निंग दोनों तो सेम ही है, बट हमने क्या किया, यहाँ पे कैपिटल कर दिया इसका फर्स्ट इनिशियल लेटर। सो नाउ पाइथन इज अ केस सेंसिटिव, नाउ यू विल गेट फॉल्स, which means we shows that the learning is not present into your string 5. This happens because your Python is a very case sensitive language. Yes, sir. समझ में आ रहा है क्या ये? यो रिपीट करना Hello? मनीष चाचा रिपीट करना। Oh. So for example, now I want to find out this machine word present है या ये स्ट्रिंग में या नहीं है। तो उसको किस तरह से करेंगे हम लोग, फिर मशीन को ले लो, वर्ड को लिखो यहाँ पे और चेक करो कि वो प्रेजेंट है आपके डेटा स्ट्रिंग में या नहीं। तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग का नाम क्या है, ये नाम है। इसको अगर शिफ्ट एंटर दबाओगे तो क्या आएगा आंसर, ट्रू, बिकॉज मशीन इज प्रेजेंट, दिस वर्ड इज प्रेजेंट इनटू योर दिस स्ट्रिंग। लेकिन अगर मैं अब क्या करता हूँ, एक अलग वर्ड देता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम कि लेट अस टेक जय इन स्ट्रिंग 5। तो जय प्रेजेंट है क्या ये स्ट्रिंग में? It is not present. So your answer should be false. Now
अगेन वन मोर एग्जांपल आई एम टेकिंग, दो मशीन इज प्रेजेंट, अगर मैं यहाँ पे ये मशीन को हटा के इसको थोड़ा कैपिटलाइज कर दिया तो m को बड़ा कर देता हूँ अभी. If we make it like this and if you want to find out this in this string number 5, so what will be your answer? क्या आएगा आंसर? ये मशीन प्रेजेंट है क्या यहाँ पे? मशीन प्रेजेंट है लेकिन स्मॉल में है सारे वो लेटर, है ना, और ये मशीन कैपिटल वर्ड में हमने स्टार्ट किया है. सो दो योर पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, so it will return you a false, which means that this word is not present into your what? In string. Is it fine? Yes. Yes or no? Yes. So I think we should stop today. मुझे और कवर करना था अभी स्ट्रिंग फंक्शंस, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसको और थोड़ा आधा घंटा लगेगा. इफ यू आर रेडी देन आई कैन टेक, अदरवाइज वी विल स्टॉप. प्लीज लेट मी नो क्या मंशा है आप लोगों की. Radio. हेलो अदर मेंबर्स, सर ठीक है सर, Please आज के reply लिए तो fast. काफी है. मर्जी है सर. हाँ सर ये तो बहुत है सर आज के लिए तो. ओके देन मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता